اعلیٰ خفیہ اداروں نے غیر ملکی مراسلے کی تحقیقات کی، گزشتہ حکومت کے خلاف سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید کی مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ، قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ پاکستان اور یورپی کمیشن کا دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور یورپی کمیشن کی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں ضروری اشیاء کی عدم دستیابی اور گراں فروشی کا نوٹس، صنعت اور پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزراء کو فوری کوئٹہ پہنچنے کی ہدایت۔ محمد شہباز شریف کل بلوچستان کا دورہ کریں گے، خصوصی ریلیف پیکج پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی، الزام ثابت نہ ہونے پر 120 دن میں نام نکال دیا جائے گا، 3000 لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دہشت گردی اور ملکی سلامتی کے خلاف اقدامات میں ملوث افراد پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، بیرونی سازش کی باتیں محض ڈرامہ ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، جاوید لطیف، چودھری صالح حسین، آغا حسن بلوچ اور ہاشم مرتضی نے حلف اٹھا لیا، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام کی تقریب میں شرکت۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفے ڈی سیل قانون کے مطابق منظور ہوں گے، ارکان سے اپنے دفتر میں الگ الگ ملاقات کروں گا، اسپیکر راجہ پرویز اشرف۔ عوام عمران خان کا جھوٹا بیانیہ مزید قبول کرنے کو تیار نہیں، 4 سال سے ان کی تقاریر تبدیل نہیں ہوئی، پی ٹی آئی دور میں 45,000 ارب کا ریکارڈ قرضہ لیا گیا، آئین اور پارلیمان پر حملہ کرنے والے نے کشمیر پر بھی سودے بازی کی، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پی ٹی آئی حکومت نے سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، سیاسی رشوت بانٹنے کے چکر میں منصوبوں کا گلا گھونٹا گیا، فنڈنگ کیس کے ممکنہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے عمران خان الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ گورنر پنجاب نامنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے، صدر مملکت حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے کوئی اور نمائندہ مقرر کریں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ قانون سازی پارلیمنٹ جبکہ تشریع عدالت کا کام ہے، آرٹیکل 63A میں سزا کا تعین نہیں کیا گیا، ووٹ شمار نہ ہونے کا مطلب ہے کہ متعلقہ رکن نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس، صدارتی ریفرنس کی سماعت عید الفطر کے بعد تک ملتوی۔ آوران میں دہشت گردوں کا فورسز کی چوکی پر حملہ ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں میجر شاہد بشیر شہید، ایک سپاہی زخمی، وزیر اعظم کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے مظالم میں کمی نہ آ سکی، ضلع بارہمولہ میں گھر گھر تلاشی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، 2 روز میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی۔ بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ، مختلف علاقوں میں مسلم کش فسادات، پولیس نے بازوؤں سے محروم شخص سمیت متعدد مسلمانوں کے خلاف پتھراؤ کے الزام میں مقدمات درج کر لیے۔ سیہونی فورسز کا ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا، نمازیوں پر فائرنگ اور شیلنگ، 31 فلسطینی زخمی، فوج نماز فجر کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ یوکرین میں روسی فوج کا ڈنباس کے بعد کراماٹرس کی طرف رخ، بمباری کی وجہ سے ماریوپول سے انخلا کے منتظر افراد کو نکالا نہیں جا سکا، یوکرین کو ماہانہ $7 ارب کی ضرورت ہے، اسکول، یونیورسٹیاں، اسپتال، کاروباری مراکز اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، صدر ولادیمیر زیلنسکی۔
मुल्क भर में हजारों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। माह सयाम की बरक़ात की फ़यूज़ समेटने में मसरूफ। आखिरी अशरे में शब कद्र की तलाश। तू भी मेरे को शक्ल से हंगरी और होमलेस लगता है। ये खाली चश्मे लगाने से आदमी में टेसड़े नहीं आ जाते हैं। दिमाग नहीं खराब करना। मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज अदाकार का फन आज भी दिलों में जिंदा। दौरा यूरोप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से एम्स्टरडैम पहुंच गई। कौमी टीम नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ मैचेस खेलेगी। पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 26 अप्रैल में होगा। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान आईसीसी के जनरल मैनेजर मुकर्रर, आइंदा माह से चार्ज संभालेंगे। वसीम खान लेस्टरशायर काउंटी क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि आला खुफिया इदारों ने गुज़श्ता हुकूमत हटाने से मुतालिक मुरासले की तहकीकात की है, लेकिन गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद की मुबैना धमकी आमेज मरासले पर ब्रीफिंग। शुरका ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम का तफसीली जायजा लिया। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि मुफस्सल तहकीकात किसी भी गैर मुल्की साजिश की नफी करती है। आला खुफिया एजेंसीज ने दोबारा मुतला किया है कि उन्हें इस मामले पर किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। इस इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और हिना रबानी खर शरीक हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक किया गया। यूरोपीय कमीशन की सदर ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अमन, खुशहाली और तरक्की के मुश्तरका मकासद पर मबनी अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने GSP+ इंतजामात को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की तिजारत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन की सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इल्जाम साबित न होने पर 120 दिन में नाम निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए कानून से 3000 लोगों को फायदा होगा। ताहम दहशतगर्दी में मुलव्वस और मुल्की सलामती के खिलाफ इकदामात में मुलव्वस अफराद पर इसका इतलाक नहीं होगा। तफसीलात बताएंगे यासिर हुसैन। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से मसाइल को हल किया जाएगा। ECL से मुतल्लिक नए कवानीन मेरिट पर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 120 दिन में कोई शहादत सामने नहीं लाती तो अज खुद नाम ECL से निकल जाएगा। कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट जो है वो जिस गवर्नमेंट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, अगर उसको 120 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो तमाम लोग जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे। इस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो 4863 लोग हैं। इनमें से तकरीबन 3000 लोगों को जो है वो इस एक इंटरवेंशन से जो है उनको बेनिफिट होगा। मुल्क की सलामती के लिए जो लोग ख़तरा तस्वर होंगे और या जिन अफराद के नाम जो हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत की वजह से जो है वो ECL पे डाले गए होंगे,
وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ دور میں نیب کو مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور نیب کے نوٹس پر مخالفین کے نام ECL میں ڈالے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بغیر انکوائری کے کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کے اوپر ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، عوامی مفاد میں آنے والی ہر تجویز کا خیر مقدم کیا جائے گا اور آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، مزید 4 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ میاں جاوید لطیف، چودھری صالح حسین اور آغا حسن بلوچ نے وفاقی وزیر، جبکہ ہاشم نوتزی نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے MKM کے رکن قومی اسمبلی خالد مقبول صدیقی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کو ریلیف فراہم کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے MKM کی جانب سے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں ضروری اشیاء کی دستیابی میں کمی اور مقررہ نرخوں سے زیادہ پر فروخت کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم نے صنعت و پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزراء کو فوری طور پر کوئٹہ پہنچنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ محمد شہباز شریف کل خود بھی بلوچستان کا دورہ کریں گے اور خصوصی ریلیف پیکج پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء کا مقررہ نرخ سے زیادہ پر فروخت کرنا جرم ہے جس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ PTI اراکین اسمبلی کے استعفے ڈی سیل کر دیے ہیں۔ منظوری کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار ہوگا، یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ استعفے جو ہے وہ میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ اس پر میری رولنگ آ چکی، ہم نے ڈی سیل کر دیے۔ میں اسٹرکٹلی اس کو رولز کے تحت دیکھوں گا، جو بھی اس کو قانون اور رولز کے تحت اس پر فیصلہ کیا جائے گا، اور میں بالکل اس بات پر بڑا کلیئر ہوں کہ رولز اور قانون اور آئین کے باہر جا کر کوئی کام نہیں۔ ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کی معاشی دہشت گردی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ عمران خان پر عدم اعتماد کسی اور نے نہیں، پاکستان کے عوام نے کیا۔ تفصیلات ملک عمر سے جانیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ عوام سے 1 کروڑ نوکریوں اور لاکھوں گھر دینے کا جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ بیت المال ہے جس میں عمران خان نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ خودداری کا دعویٰ کرنے والوں نے کشمیر کو بیچ دیا۔ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر اسی سانس میں کرتے رہے، قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان کی عوام کو ڈبو دیا۔ 43,000 ارب کا قرضہ لیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنا قرضہ کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا ملک میں 4 سال میں عمران خان نے لیا۔ IMF کا غلام بنایا، IMF کے ساتھ جو شرائط کی ان کو بھی مکمل نہیں کیا، اور آج معاشی دہشت گردی کی ملک کے اندر جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو ان کے حواریوں نے اقتدار سے نکالا۔ الیکشن پاکستان کے عوام کا حق ہے جو مقررہ مدت پر ہوں گے۔ اب الیکشن میں سازش ہوگی نہ مداخلت۔ الیکشن کا مطالبہ ہمارا تھا، اپوزیشن کا تھا، الیکشن کا مطالبہ ہمارے اتحادیوں کا تھا، اور انشاءاللہ یہ حق شفافیت کے ساتھ، یہ حق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، یہ حق غیر جانبداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کو، یہ حکومت جو پاکستان کی عوام کے تمام وفاقی اکائیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ تحفہ پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ یہ حکومت دے گی۔
वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की तकारीर पिछले 4 साल में तब्दील नहीं हुई। अवाम मजीद उनका झूठा बयानिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने सी पैक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। सियासी रिश्वत बांटने के चक्कर में मंसूबों का गला घोंटा गया। उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिन फैसले को देखते हुए इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई और करप्शन में बदतरीन इजाफा हुआ है और मुल्क करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में मजीद 14 दर्जे तनाजरी का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सी पैक मंसूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान नियाजी साहब पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वजीर आजम थे, इसके बावजूद वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। 71 सालों में पाकिस्तान ने 25,000 अरब का कर्जा लिया। इमरान नियाजी साहब के 3.25 साल में 20,000 अरब का कर्जा लेकर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी गिरवी रख दिया गया। हमने सी पैक के तहत चीन के साथ तय किया था कि 2020 से लेके 2025 तक सनती ताउन का मरहला होगा। उन 9 सनती जोन्स में से 5 के ऊपर काम ही नहीं शुरू हो सका। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान नियाजी अपनी नाकामी पर पर्दा डालकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की, जिसकी मजम्मत करते हैं। अगर वो शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो उन्हें इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में आकर बैठना होगा। आप इंतशार फैला के पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। आपको अब खौफ है कि आपके जो माजी के लूट मार है उस पे आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। फॉरेन फंडिंग केस के मुमकिना फैसले के खौफ से आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना फायर खोल दिया है। अगर आप इंतखाबात चाहते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात के अमल का हिस्सा बने ताकि अगला इलेक्शन गैर मुतनाज़े हो, साफ हो और शफाफ हो। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान एक आइन शिकन शख्स को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अदालत आइन की मुहाफिज है, आइन शिकनी होगी तो अदालत अपना काम करेगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इमरान खान की इल्जाम तराशी का जवाब जरूर देंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेलवे मुलाजमीन और पेंशनर्स को वक्त पर अदायगियां होंगी। ईद पर ट्रेन के किरायों में 30% रियायत दी जाएगी। तफसील जानते हैं अवैस कुरैशी से। रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने अगर आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दी होती तो उनको आज ये दिन ना देखने पड़ते। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने न सिर्फ मईशत को तबाह किया बल्कि इदारों को भी कमजोर किया। अगर आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। तो अब कह रहा है कि गैर मुल्की साजिश है। तो कल नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा कि तुमने एटमी धमाका किया जो तुम्हारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश होगी। तुम सी पैक लाए हो, माशी धमाका किया जो कोई तुम्हारे खिलाफ होगा। तुमने किया क्या है? किया यह है कि आपने कश्मीर जो है वो मोदी की झोली में डाल दिया। क्यों नहीं की? किया यह है कि आपको जब ट्रंप मिला तो आपने कहा मैं दूसरा लगता है वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। ये है इनका कच्चा चट्टा। सो ये अब भंगड़े डालें, ये लुडियां डालें, ये डांस करें, ये जो मर्जी करें, इनके मुकद्दर में यही कुछ है। हमने काम करना है, मगर ये नहीं हो सकता कि ये बोलेगा तो इसको जवाब नहीं मिलेगा। जवाब इसको मिलेगा। वजीर रेलवे ने कहा कि इदारे की बेहतरी और इसे मुनाफा बख्श बनाना मेरे लिए चैलेंज है। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरक्की वहीं से शुरू होगी जहां 4 साल पहले हम इसे छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि ईद के 2 दिनों के दौरान किरायों में कमी की जाएगी और मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह बर वक्त मिलेगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ फोकस करें और जहाँ जहाँ खराबी है उसको रिकवर करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें। मुझ पर पाकिस्तान रेलवेज़ की और सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेलवेज़ का इंजन हमने स्टार्ट कर दिया है। चंद दिन तक पूरी तरह अदारा फाल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से नैब को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया
نیب کے قوانین میں اصلاحات ضروری ہیں۔ اویس قریشی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں توقع کا اظہار کیا ہے کہ صدر مملکت نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کے کسی دوسرے فرد کو مقرر کریں گے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے کے خلاف حمزہ شہباز کی درخواست اور عدالتی فیصلے سے متعلق دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی یہ رپورٹ۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ گورنر پنجاب نے صوبے کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے معذوری ظاہر کی ہے اور وہ 24 گھنٹے میں صدر مملکت کو اپنی معذوری کی وجوہات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے ریمارکس دیے، پچھلے 21 روز سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ کسی سربراہ کے بغیر چل رہا ہے، جو کہ تشویشناک امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری نہ ہونے سے صوبے کے انتظامی امور اور گورننس متاثر ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے بیان کے بعد مختصر فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ گورنر پنجاب نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لینا چاہتے، لہٰذا عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت ان سے حلف لینے کے لیے کسی فرد کو مقرر کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ رجسٹرار آفس صدر مملکت کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کرے۔ عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا گورنر نے حلف نہ لے کر آئین سے انحراف کیا۔ ایڈمٹ کر لی ہے جی، پٹیشنز جو ہیں مینٹینیبلٹی کا تھریش ہولڈ بھی کراس ہو گیا، یہ قابل سماعت ہیں اور انہوں نے رسپونڈنٹس کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور پیر جو فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، کیونکہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت جو کورٹ ڈیز ہیں وہ منڈے ٹو فرائیڈے ہے، فرسٹ ورکنگ ڈے پہ رسپونڈنٹس کو بھی انہوں نے نوٹس کر دیے اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو انہوں نے ان پرسن طلب کیا along with ریکارڈ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز 16 اپریل کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں 197 ووٹ حاصل کر کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، تاہم گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ملک کو پختہ جمہوریت کی طرف لے جانا ہوگا، اس مقصد کے لیے قانون سازوں کو باہمی مشاورت کرنا ہوگی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق دائر ریفرنس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا کام آئینی سوالات کا جواب دینا ہے، ضمیر کے مطابق آئین کے تحت جو درست لگتا ہے فیصلہ دیتے ہیں، دعا ہے کہ ہمارے فیصلے ملک و قوم کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ صدر مملکت کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا، موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 63A کو آئین میں شامل کرنے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ ختم کرنا تھا، منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ ووٹ شمار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ رکن نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ آرٹیکل 63A میں سزا کا تعین نہیں کیا گیا، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا جبکہ اس کی تشریح کرنا عدالت کا کام ہے۔ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی درخواست میں کسی منحرف رکن کو فریق بنایا ہی نہیں، اس کا ووٹ شمار نہ کرنے کی استدعا کی، صرف منحرف رکن کی تاحیات نااہلی کے لیے استدعا کی۔ عدم اعتماد تحریک میں کسی رکن نے انحراف کرتے ہوئے ووٹ نہیں ڈالا۔ صدارتی ریفرنس پر آئندہ سماعت عید الفطر کے بعد ہوگی۔ ناظرین، اب ایک افسوسناک خبر، بلوچستان میں آوران کے قریب سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، تاہم بھاگتے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فوجی افسر میجر شاہد بشیر شہید جبکہ سپاہی زخمی ہو گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے جمعرات کی رات کہان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ حملے کو کامیابی سے پسپا کر کے دہشت گردوں کا قریبی پہاڑی علاقے میں تعاقب کیا گیا۔ بلاکنگ پوزیشنوں میں سے ایک پر دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے شہادت کو گلے لگانے والے سرزمین کے بہادر سپوت میجر شاہد بشیر کے بلندی درجات کے لیے دعا کی اور مادر وطن کے دفاع کے دوران زخمی ہونے والے سپاہی کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عزم کو سراہا۔ اور ترکی کے وزیر خارجہ میولو چاوشوغلو نے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کو ٹیلی فون کیا اور خارجہ امور کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اور مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فورسز نے تازہ کارروائیوں کے دوران بارہمولہ اور جموں کے اضلاع میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने सिंजवान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे पहले इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज का एक एहलकार हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों ने जिला बारामूला के इलाके पारसवानी में एक पुरतशद्दुद ऑपरेशन के दौरान मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया, जबकि गुज़श्ता रोज इसी इलाके में 3 नौजवानों को शहीद किया गया था। मकबूजा कश्मीर में इतवार को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। पूरे मकबूजा कश्मीर खुसूसन जम्मू खित्ते में भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल सिक्योरिटी के नाम निहाद इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत हार जेल से एक पैगाम में मकबूजा कश्मीर की सियासी और इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने काबिज फौजियों को निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट दे रखी है। मुतादिद सिख तंजीमों के कारकुनों ने नई दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी और भारत के दीगर इलाकों में मुसलमानों के अमलाक गिराने की मुहिम के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिख बिरादरी दुख की इस घड़ी में मुसलमानों के साथ खड़ी है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए हैं। पुलिस ने बाजुओं से महरूम शख्स समेत मुताद्दिद मुसलमानों के खिलाफ पथराव के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिए। हिंदुओं के त्यौहार रामनवमी के मौके पर दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हिंदू मुस्लिम फसादात को भड़काने की कोशिश की गई। इंतजामिया और पुलिस ने मुसलमानों को मुरद इल्जाम ठहराकर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी इमलाक गिरा दी। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज को समेटने के लिए मुल्क भर में हजारों मुसलमान इत्तिकाफ बैठ गए हैं। लाहौर से नवीद हयात की रिपोर्ट देखिए। एतकाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत की मिराज है। जब अल्लाह के बंदे अपना घर बार छोड़कर चंद पर्दों में अपने महबूब के साथ राजो नियाज में मसरूफ हो जाते हैं। मोतकिफ रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े को बाद नमाज असर दुनिया से अपना नाता तोड़कर किसी ऐसी मस्जिद में बैठ जाता है जहां 5 वक़्त की नमाज और जुम्मे का खुतबा बाकायदगी से होता है। एतकाफ के दौरान अबादत और रियाजत का सिलसिला शवाल का चांद नजर आने तक जारी रहता है। लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में इस साल भी हजारों फर्जंदान तौहीद एतकाफ पर बैठ गए हैं। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद और दाता दरबार मस्जिद समेत बड़ी मसाजिद में एतकाफ के खसूसी इंतजाम किए जाते हैं और हर शहरी की ख्वाहिश यहाँ एतकाफ करने की होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से एतकाफ नहीं हुआ। तकरीबन 2000 से अबव लोग जो है ना यहाँ बैठ रहे हैं एतकाफ में। एतकाफ को माह रमजान की बेहतरीन इबादत कहा जाए तो बेजा ना होगा और ये सादत हासिल करने वाले खुश नसीब अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करते हैं और इत्मीनान कल्ब भी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, 20 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम का वो अहम तरीन दिन है जिस दिन मुसलमानों ने मक्कातुल मुकर्रमा फतह किया। इसी हवाले से देखते हैं सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान कई जंगों के बाद सुलह हुदैबिया करार पाई थी। ताहम कुरैश ने 22 माह बाद अपने हलीफ बनु बकर के साथ मिलकर मुसलमानों के हलीफ बनु खुज़ाआ पर हमला किया और हुदूद हरम में बनु खुज़ाआ के जवानों को शहीद किया। कुरैश मक्का की सरकशी के बाद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जिहाद की तैयारी और हलीफ कबाइल को लश्कर में शामिल होने के लिए हुक्म दिया। 10 रमज़ानुल मुबारक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। मक्के में दाखिले के वक्त कुरैश के कुछ सरकशों ने मज़ाहमत की। ताहम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते ने उन्हें तहे तह किया। जब अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आ गई और मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप लोगों को देख रहे हैं कि वो फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुमसे वही बात कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में दाखिल हुए तो तवाज़ो के तौर पर रब्बे कायनात के शुक्र में सरे मुबारक ऊँटनी के कुजावे पर रख दिया। इस वक्त काबे में 360 बुत रखे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जो वो हर बुत पर मारते और वो बुत मुंह के बल गिर जाता था। मक्का पर मुसलमानों की फतह तारीख़ इस्लाम में एक अहम बाब है, जिसके बाद ये बिल्कुल मुसल्लम हो गया कि अब यहाँ बुत परस्ती का कोई वजूद बाकी नहीं रह सकता। और जिस वक्त मक्का फतह हुआ और कुरैश मुसलमान हुए तो हर तरफ से तमाम कबाइल के नुमाइंदे यके बाद दीगरे दामन इस्लाम की पनाह में आ गए। सुहेल जमाली,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक खलीफा चहारुम दामाद रसूल हसनैन करैमैन के वालिद शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा का यौम शहादत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा किरदार जिन्होंने इमामत, शुजाअत, तरीक़त, फसाहत और बलागत के नाकाबिले फरामोश नक़ूश छोड़े हैं। कोयटा से वक़ार अहमद की रिपोर्ट देखिए। खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। इमामुल मुत्तकीन सैयद शुहदा हज़रत अली तारीख़ इंसानी की वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी का ऐलान किया। मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए। हमेशा जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार रहना, जो भी कहना हक के लिए कहना। शेर खुदा शाही मर्दा ही नहीं, इल्म, तहकीक और गौर व फिक्र के भी शेर जज़्दा हैं। नहजुल बिलागा में अली इब्ने अबी तालिब के खुतबात और तहरीरें हर दौर के सोचने वालों के लिए फिक्र के नए ज़ाविये खोल देती हैं। जिस ज़ात को विलादत का शर्फ बैतुल्लाह में मिला, जिसे मर्तबा शहादत हालत सजदा में अता हो, इसकी सिफात का अहाता इंसानी जहन के लिए करना बहुत मुश्किल है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाजरीन, रमज़ान करीम का तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। लैलतुल कद्र भी इसी अशरे में तलाश की जाती है। देखते हैं सदफ अफजल की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक दूसरे महीनों में मुमताज़ और खसूसी मकाम रखता है, लेकिन इसके आखिरी 10 दिन के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनियाए इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरह कदर नाज़िल फरमाई है। ये रात तुलुए फजर तक सलामती है। आखिरी अशरे की एक एक रात अजमत और शान वाली, जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं, ज़मीन वालों के लिए आसमान वालों की नज़र में एक एक रात ये इतनी अजमत वाली और शान वाली और चमक वाली रात है। इस रात की कदरदानी, एक एक लम्हे को कीमती बनाकर एक एक सात को अल्लाह की इबादत में सर्फ किया जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक अहम खसूसियत एतकाफ है। एतकाफ दरअसल इंसान की अपनी आजिज़ी का इजहार और अल्लाह की किब्रियाई और उसके सामने खुद सपुर्दगी का ऐलान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक रात की तलाश के लिए एतकाफ फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर जो है कमर बस्ता होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है इबादत किया करते थे। पूरी पूरी रात जो है ख़ुद भी और घर वालों को जो है अल्लाह पाक की इबादत के अंदर गुजार करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे आपको रमज़ान के जो आखिरी दिन हैं इनकी पूरी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस रात की तलाश और जुस्तजू करना चाहिए और आखिरी अशरे की रातों को ज़िक्र व इबादत में गुजारना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी बड़ी तादाद में शहरी इत्तकाफ में बैठ गए हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ इस वक्त लाइन में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रिजवान, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो कोशिश करते हैं फैसल मस्जिद में इत्तकाफ में बैठने की सादत हासिल करें, तो क्या इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से? जी, इस वक्त मैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यूँ तो पूरे रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों पर अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो इनाम व कराम का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। आज जो है इत्तिकाफ़ की नीयत से फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में कमो बेश 750 से 800 के करीब अफराद जो हैं इत्तिकाफ़ में बैठ चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में रोज़ेदार जो हैं वो दुनिया और दुनियावी अमूर से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त को जो है उनकी रज़ा और खुशनुदगी के लिए मसाजिद का रुख करते हैं और यहाँ पर दुनियावी जितने भी काम हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। सिर्फ अल्लाह से यहाँ पर लो लगा ली जाती है, जो कि इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि इंसान ने आखिरकार जो है वो लौट कर अपने रब के पास ही जाना है। यहाँ पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी इत्तिकाफ़ में बैठने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उनके इस सहर व अफ्तार के लिए जो हैं वो बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। जी, किए गए हैं। रिजवान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा के अहाते में इस्राएली फौज ने नमाजियों पर तशद्दुद किया, जिससे मजीद 31 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस्राएली फौज नमाज फजर के बाद कंपाउंड में दाखिल हुई और इबादत में मशगूल अफराद पर रबड़ की गोलियां और स्टन ग्रेनेड फायर किए। हालिया कशीदगी का आगाज 15 अप्रैल को मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीनियों और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान मस्जिद अक्सा के अहाते में तसादुम हुआ था। काबिज फौज ने मगरबी नाके के किनारे में
कार्रवाइयां की हैं, जिसमें अब तक 29 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, रूसी फौज यूक्रेन में डोंबास के इलाकों से कर्माटोरिस्क की तरफ पेशकदमी कर रही है। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के मजीद अस्करी मुकामात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर शहरियों के इनखला के लिए खोले गए इंसानी कॉरिडोर आज बंद रहे। रूसी बमबारी की वजह से मारिउपोल से इनखला के मुंतजर अफराद को निकाला नहीं जा सका। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों की वजह से होने वाले इक्तसादी नुकसान की तलाफी के लिए यूक्रेन को माहाना $7 अरब की जरूरत है। महाजरीन के मसले और इमदाद की फराहमी के लिए आलमी बैंक और दीगर इदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, कारोबारी मराकज और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। बहिरा अस्वद की बंदरगाहें रूसी महासरे में होने की वजह से बरामदात भी मुतासिर हुई हैं। और नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीड एंड रिसर्च स्टडी का संग बुनियाद रख दिया गया है। तिब के शोबे में होने वाली मुसलसल काविशें इंसान का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। नया सर मंसूबा भी आला तालीम के शोबे में नया बाब रकम करेगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर ने नम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च के मंसूबे पर तामीर के काम का आगाज़ किया। मंसूबे पर लागत का तखमीना तकरीबन 3 अरब 48 करोड़ 80 लाख रुपए लगाया गया है, जो तेज़ी से तब्दील होती दुनिया और तरक्की की रफ्तार का साथ दे सकेगा। इंस्टीट्यूट में तिब के मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की जदीद तरीन सहूलतें मैसर होंगी। पाकिस्तान में इस नौइयत का ये पहला मंसूबा है और इसमें ना सिर्फ ये है कि बुनियादी तहकीक की जाएगी, जिसमें आप समझ लीजिए जो हमारे बुनियादी इल्म हैं जो तिब से रिलेटेड हैं उनके बारे में रिसर्च होगी, बल्कि मरीज़ों के ऊपर और नई अद्वियात की डिस्कवरी के ऊपर और उनके ऊपर बहुत सही तहकीक की जाएगी जो पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं हो रही। नया सर में जदीद तिब्बी तहकीक के लिए तकरीबन 60 PhD डॉक्टर्स की खिदमत हासिल कर ली गई हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेस, नफ्सियात, सेहत आम्मा और ग़िज़ाइयत के शोबे में तहकीक करेंगे। मंसूबे की तकमील से इल्म और तहकीक के शोबे में महारत के नए दौर का आगाज़ होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे मनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी कहा कि अर्थ डे का मकसद कुरे अर्ज़ के कुदरती माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ है। हमें तेज़ी से सरसब्ज़ व पायदार तरक्याती मॉडल की जानिब बढ़ना होगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे पहली बार 1970 में मनाया गया। तब से अब तक अर्थ डे दुनिया के 192 से भी ज्यादा ममालिक में बाकायदगी से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना, कुदरती माहौल की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से जमीन और जानदारों पर होने वाले असरात को कम से कम करना है और आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए काविशें करना है। रवा बरस अर्थ डे का मरकजी ख्याल आए मिलकर कुर्रा अर्ज को बचाएं मुकर्रर किया गया है, जिसका मकसद हमारी जमीन को दरपेश शदीद बहरान और इनका हल निकालना है। माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए शहरियों से लेकर हुकूमत तक को फाल करना है। जमीन हमारा घर है, इससे मोहब्बत का दिन ये तकाजा करता है कि हर इंसान अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखकर दुनिया को आलूदगी से बचाने के लिए किरदार अदा करे। और अब होगी अदालती कार्रवाई कोर्ट से बराह रास्त। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। चीफ जस्टिस आतिर मिनुल्लाह की कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में सिस्टम नस्ब करके अदालती कार्रवाई महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाने का बंदोबस्त किया है। ट्रायल की कामयाबी के बाद बाकायदा तौर पर वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ आजमाइश की घड़ी में पूरी उतरने वाली सदाबहार दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजहब, तारीख और सकाफत के बंधनों में जुड़े हुए हैं। सऊदी सफीर ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और रहेगा। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए हुसैन इलाही को नामजद किया है। इस बारे में स्पीकर राजा परवेज अशरफ को तहरीरी दरखास्त दे दी है, जिस पर अराकीन असम्बली मोनिस इलाही, फारूक खान और हुसैन इलाही के दस्तखत भी हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने डिप्टी स्पीकर जाहिद इकराम दुरानी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान खान कुर्सी, हेलीकॉप्टर और मराज छिन जाने पर वावेला कर रहे हैं। अवाम का जीना मुश्किल करने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा गया है। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि मुख्तसर वक्त में अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरान अवाम के एहसास से आरी थे और जो हुक्मरान अवाम के दुखों का मदावा न कर सके उन्हें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। शाजिया मरी ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 3 करोड़ 40 लाख मुस्तहिक घरानों का सर्वे किया गया है। अपने फेलियर, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुख्तलिफ तीले, बहाने, इल्ज़ामात और रोना रो रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने मुल्क को कितने कर्जों के नीचे डबो दिया है। वो क्यों नहीं बता रहे कि आज फी पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। आज महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फूड इन्फ्लेशन जो आज रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, उसमें उनकी बदतरीन कारकर्दगी वजह बनी। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि बैरूनी साजिश का राग अलापने वाले अपनी कारकर्दगी भी अवाम को बताएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुझे क्यों नहीं बचाया की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क का निजाम चलाने के लिए सब जमातों को मिलकर बैठना होगा। उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात हमारी तरजीह है, इसलिए इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लाहौर के फ्लॉप जलसे में 3.25 साल की हुकूमती कारकर्दगी नहीं बताई गई। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साबिक वजीर असद उमर को अवामी हिदायत के मुताबिक तरक्याती मनसूबों से आगाह करने के लिए मुलाकात की दावत दी है। असद उमर के नाम खत में उन्होंने कहा कि वजारत का चार्ज संभालने और जमहूरी रस्म व रिवाज के मुताबिक इशाइये पर आपके साथ अलविदाई मुलाकात के लिए मदऊ करना चाहता हूँ। मुलाकात की तारीख और वक्त का तयन आपकी सहूलत के मुताबिक होगा, जिसके लिए आपकी तरफ से मुस्बत जवाब का मुंतजर हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने वसाइल का बेहतर हिस्सा कराची की तरक्की पर खर्च कर रही है। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल हल करने में ताउन की यकीन दहानी कराई है। कराची में सदर की कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट आतिशज़दगी के मुतासरीन में मुआवजे के चेक तकसीम करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमने कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट्स के मुतासरीन को पूरे नुकसान के मुआवजे देने का फैसला किया। गुज़श्ता बरस सदर की कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट में आतिशज़दगी से 358 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई थीं। दोनों मार्केटों के मुतासरीन में 44 करोड़ रुपए से ज्यादा के चेक तकसीम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें सूबे बशमूल जम अजला में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में हालिया दिनों में बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। इन वाक़यात के मौसर तदारुक के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की सिफारिशात पर अमल दरामद का बाकायदगी से जायजा लेने के लिए सूबाई सतह पर आला सतह कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। अहलियान मीरपुर के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाए जाएंगे। मीरपुर में मंसूबे के मुआयने के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मंगला अपरेजिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला रठुआ हरियाम ब्रिज जम्मू कश्मीर का मेगा प्रोजेक्ट था, जो माजी की हुकूमतों की गफलत लापरवाही के बाइस तकमील तक नहीं पहुंच सका। नाज़रीन, सऊदी अरब में इस्लामी वर्षे को मुतारिफ कराने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें कुरान पाक के नायाब और नादिर नुस्खे रखे गए हैं।
रियाद में मुनक्किद होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह किंग अब्दुल अजीज पब्लिक लाइब्रेरी के मुदीर फैसल बिन अब्दुर्रहमान बिन मोअम्मर ने किया। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश का मकसद सऊदी अरब की मुमलिकत में कदीमी अरब और इस्लामी वर्से की देखभाल को यकीनी बनाना और वर्से का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नुमाइश में 10वीं सदी से 13वीं सदी के नादिर और नायाब कुरान मजीद के 267 कदीम नुस्खे रखे गए हैं, जिनमें से कुरान पाक के इन नुस्खों में मुख्तलिफ रस्मुल ख़त के कुरान मजीद मौजूद हैं। इसके अलावा आम स्याही के अलावा फेरोजी स्याही और सोने के पानी से लिखे गए नुस्खे भी रखे गए हैं। रमज़ान मुबारक में फलाही इदारों की जानिब से मुस्तहिकीन में अरबों रुपए से ज़ायद मालियत का राशन, कपड़े और ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में रमज़ान राशन तकसीम की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं शाहरुख शफी। माह मुक़द्दस में अल्लाह की रज़ा के लिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमें रमज़ान राशन तकसीम के अमल में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में फलाही तंजीम तला महमूद फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान राशन तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रियासतों और सरहदी अमूर के वफाकी वज़ीर सेनेटर तला महमूद ने कहा कि मौजूदा हालात में बहुत से मसाइल से नाबर्द आज़मा हैं, अवाम के हकीकी मसाइल से आगाह हैं, इनको रिलीफ फ्राहम करने के लिए खुसूसी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। टेक्निकल लोगों को कोशिश करते हैं कि एजुकेशन दें, उसके बाद वो अपना रोजगार खुद कमाएं। हर घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सहाफियों का आगाही फैलाने में अहम किरदार है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त फौरी तौर पे जो ये छोटे लेवल के लोग हैं जो इस वक्त तकलीफ में हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा पैकेज या ऐसा कोई सिलसिला निकाले जिससे उनकी जो वक्ती जो मसाइल हैं, ये ज़रूरियात है, वो पूरी हो सके। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि काबीना में तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं। काबीना मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अवाम को सस्ती और मयारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर खुसूसी पैकेज दिया गया, जिससे महंगाई से तंग अवाम ने सुख का सांस लिया है। तफसील बताएंगे आसिम नज़ीर अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर जो इक़दामात किए हैं, इससे आम आदमी को माह रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में फौरी कमी से बड़ा रिलीफ मिला है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, चीनी 70 और घी मार्केट से 195 रुपए कमी के बाद 260 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो स्पेशल इनिशिएटिव है और जो कि गरीब आवाम के लिए है, जो कि पिछे हुए तबके के लिए है, उन्होंने ख़ास तौर पर ये इमरजेंट बेसिस पे आटे का रेट जो है ना 10 kg बैग यानी कि 400 रुपए का वो किया है। महंगाई के सताए शहरियों ने ईद से कबल मिलने वाले बड़े रिलीफ पैकेज को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। जो मार्केट में घी मिल रहा है जो वो 475 रुपए में, 480 रुपए में और 500 तक अच्छा जो है वो घी मिल रहा है। यहाँ पे अच्छा घी है लेकिन यहाँ पे 260 में है। दालों पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, घी पे है, आटे पे है, चीनी पे है, चावलों पे है। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, हमें बहुत फ़ायदा दिया हमें रमज़ान पैकेज का। लाहौर के शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर दिए जाने वाले बड़े रमज़ान पैकेज का दायरा कार बढ़ाया जाए ताकि आवाम को माह मुक़द्दस की तरह पूरा साल अशियाए ज़रूरिया मुनासिब कीमत पर मिल सकें। महंगाई से तंग आवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अशियाए खुर्दनोश पर ईद से कबल मिलने वाले बड़े रिलीफ को ईद का तोहफा करार दिया है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और PTV कराची मरकज से जारी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन के 20वें रोज़ी की नशरियात में मौलाना इमरानुल हक कल्याणवी ने इस्तिखारे के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मज़ीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। तिलावत कलाम पाक के बाद तिलावत का तर्जुमा करने की सादत मेज़बान अहसन खान ने हासिल की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाज सिद्दीक इस्माइल ने पेश की और इस पुरनूर महफिल को जगमगा दिया। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, रे फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला।
खूबसूरत डिज़ाइन से आरास्ता दीरा ज़ेब सेट रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन की रौनक में मज़ीद इजाफा कर रहा है। 20 रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से उलमाए कराम, मौलाना हनीफ मोहम्मद, मौलाना ज़हीर और मुफ्ती अबू मोहम्मद ने फतह मक्का पर रोशनी डाली। मौलाना इमरान हक कल्याणवी ने इस्तिखारा की अहमियत के बारे में बताया। मेहमान अदाकार के सेगमेंट में अदाकार जावेद शेख की आमद ने ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। मारूफ अदाकार जावेद शेख ने PTV की काविश को सराहते हुए कहा कि नशरियात में रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस को मलहूज़ खातिर रखा गया है। किचन सेगमेंट में शेफ आयशा अबरार ने मज़ेदार बटाटा बड़ा बनाया और इसे बनाने की तरकीब बताई। अदाकार जावेद शेख भी डिश तैयार करने में शरीक हुए। ट्रांसमिशन में खालिद अनम ने शिरकत की और बच्चों को फतह मक्का का वाक़या असरअंगेज़ अंदाज में बयान किया, जबकि हर्बल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिना ने फ़ोन लाइन पर लोगों को तिब्बी मशवरे भी दिए। मौलाना बशीर फारूकी ने रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे की मुनासिबत से ऑनलाइन दुआ कराई। अज़ान मगरिब के साथ नशरियात इख्तिताम पजीर हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। कुछ बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की, तो आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद, मिट्टी, चोर 42, तुर्बत, हैदराबाद, सकरंड और बहावल नगर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।